بہاول نگر کے متوسط اور غریب طبقے کے لیے تعلیم مزید مشکل ہو گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا 15 جنوری سے ریجنل کیمپس بند کرنے کا فیصلہ، شہریوں اور طلبہ میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شہری کہتے ہیں فنڈز کی کمی کی سزا طلبہ کو دینا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بہاول نگر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ریجنل کیمپس 15 جنوری 2026 سے بند کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد ضلع بہاول نگر کے شہریوں اور طلبہ میں شدید تشویش اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ کیمپس نہ صرف بہاول نگر بلکہ گرد و نواح کے علاقوں کے ہزاروں طلبہ کے لیے تعلیم کا واحد سہارا ہے۔ فیصلے سے تقریباً 6000 غریب اور متوسط طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ یہاں پر غریب لوگ، تاجر، چھوٹا ملازم، بچے بچیاں یہاں سیکنڈ ٹائم اپنی تیاری کر کے ایگزام دے کر تعلیم کے مواقع حاصل کر رہے تھے، جو کہ گورنمنٹ نے فنڈ کی کمی کی وجہ سے بہاول نگر کے ریجنل آفس کو بند کر کے ان بچے بچیوں پر ایک ظالمانہ تلوار رسید کی ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے اور ہمارے وفاقی وزیر تعلیم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو ناانصافی اور تعلیمی قتل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فنڈز کی کمی کی سزا طلبہ کو دینا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ شہریوں نے منتخب اراکین اسمبلی سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کیمپس کی بندش کو رکوانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ گزارش یہی کروں گا کہ ایک تو خاص مریم نواز صاحبہ کے سے مخاطب ہوں کہ یہ یہاں پہ یہ ضلع بہاول نگر ہے، بہت ڈسٹرکٹ ہے، تو اس کے اندر تعلیمی ادارے بہت کم ہیں اور میرے دیکھنے میں تو یہ بہت رونگ ہے کہ آپ اس کو بند کیے ادارہ ہے۔ یہ کثیر تعداد میں طلبہ یہاں پر علامہ اقبال سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ختم ہونے کی وجہ سے طلبہ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آن لائن سسٹم کے مسائل کے حل کے لیے دفتر اپنی افادیت رکھتا تھا، جو اس کے ختم کرنے کے لیے 15 سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جو اسٹوڈنٹ کے لیے مشکل پیدا کرے گا۔ ریجنل کیمپس کو بند کرنے کا فیصلہ تو سامنے آ گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوامی دباؤ اور طلبہ کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لیتی ہے یا ہزاروں طلبہ کو بے یقینی کے اندھیرے میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول۔ وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا کی صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، دالیں، چاول اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کر دی گئیں۔ وہاڑی میں پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا نے کہا کہ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، جس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ چاول کی قیمت 290 روپے سے کم ہو کر 283 روپے، دال چنا 210 روپے سے کم ہو کر 208 روپے، دال ماش 365 روپے سے کم ہو کر 360 روپے فی کلو کر دی گئی، جبکہ بیسن 220 روپے سے کم ہو کر 214 روپے، دال مسور 230 روپے سے کم ہو کر 225 روپے فی کلو میں دستیاب ہونی چاہیے۔ دوسری جانب شہریوں نے انتظامیہ کے اس احسن اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا حکومت پنجاب کے اقدامات سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی ہے۔ اچھا ہویا وا جڑا دال چینی گھیو وغیرہ سستا ہو گیا، سانو بہت اچھا ریلیف ملیا ہے جی مریم نواز دی طرفوں جی، سانو واسطے بہت ہی اچھی گل ہے جی۔ اسی چلو غریب آدمی ہے، ساڈے بچیاں دا پیٹ تا پلدا ہے نا جی، لیکن ایک یہ ہے بھی چلو سانو بہت اچھا ریلیف ملیا ہوا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اگر حکومت اسی طرح غریب اور محنت کش طبقے کے لیے روزمرہ زندگی کی چیزوں میں ریلیف فراہم کرتی رہی تو مہنگائی میں واضح کمی آ سکتی ہے۔ دکانداروں نے بھی انتظامیہ اور حکومت پنجاب کے مہنگائی کنٹرول کرنے کے اقدامات کو خوشائند قرار دیا ہے۔ دکانداروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر غریب آدمی کو اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کی کمی کا فائدہ ملے۔ مریم نواز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تمام چیزوں کے ریٹ کم کرائے ہیں اور ان کی کوششوں سے اور صفائی بھی ہے اور لوگ خوش ہیں۔ چلو جو چینی ہے وہ بھی اب 150 روپے پہ آ گئی ہے اور جو دالیں ہیں وہ بھی تقریباً 200 روپے 10 روپے بہت سستی ہو گئی ہیں اور لوگوں کو ریلیف ملے گا، لوگ بڑے خوش ہوں گے۔
डिप्टी कमिश्नर ने अंजुमन ताजरान और दुकानदारों को वाज़े तौर पर बताया कि अशियाए खोरोनोश की मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाएं। दुकानदार निर्खनामे नुमाया जगहों पर आवेजा करें। गिरा फरोशी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, रोही, विहाड़ी। मुल्तान की जदीद तरीन सड़क मुल्तान एवेन्यू पर काम तेजी से जारी। कमिश्नर ने काम का मेयार और रफ्तार के जायजे के लिए मंसूबे का दौरा किया। एसी हाईवेज ने कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया मंसूबा 4 माह में 2 अरब 80 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। सेहदवारा चौक से साहू चौक तक 9 किलोमीटर सड़क को मॉडल रोड बनाया जाएगा। मुल्तान में एक और बड़े तरक्याती मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने मुल्तान एवेन्यू मंसूबे का दौरा किया और तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एससी हाईवे गुलाम नबी ख्याल ने कमिश्नर मुल्तान को मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मुल्तान को बताया कि मुल्तान एवेन्यू मंसूबा 4 माह में 2 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें 9 किलोमीटर तवील मॉडल रोड, ड्यूल कैरिज वे, ग्रीन बेल्ट और जदीद ड्रेनेज सिस्टम शामिल है। कमिश्नर मुल्तान ने मंसूबे की तरफ से तजावुजात फौरी खत्म करने, काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत की। कमिश्नर का मजीद कहना था कि तमाम मुतल्लिका डेवलपमेंट इदारे अपनी तयशुदा टाइमलाइंस के मुताबिक रिपोर्ट जमा कराएं। टीम को टारगेट दिया है कि हमने इसको बाई एंड ऑफ मार्च मुकम्मल करना है और इसीलिए इसकी सुपरविजन ज़्यादा की जाती है और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह काम का पेस ठीक है। जो इसमें CNW के लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम जो काम कर रही है वो इसमें अच्छा काम कर रही है और मैं तवक्को करता हूँ कि अगर हमने यही पेस बरकरार रखा तो बाई एंड ऑफ मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में तो मुल्तान के शहरियों के लिए ये 9 किलोमीटर रोड ड्यूलाइज है। अगर हम इसकी दोनों साइडें ले लें तो टेक्निकली 18 किलोमीटर बनता है। कमिश्नर का कहना था कि मुल्तान एवेन्यू मंसूबा वजीर आला पंजाब की जानिब से जनूब पंजाब के शहरियों के लिए तोहफा है, जो शहरी औलिया की 50 साल तरक्याती प्लान के तहत बनाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान, शेख रोही, मुल्तान से 2.5 करोड़ रुपए के नॉन कस्टम पेड सिगरेट पकड़े गए। FBI ने खुफिया इत्तला पर टाटेपुर से सिगरेट के 200 कार्टन बरामद किए। नॉन कस्टम पेड सिगरेट के खिलाफ FBR की कार्रवाई जारी। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान की खुफिया इत्तला पर टाटेपुर के इलाके में 2.5 करोड़ की सिगरेट जब्त कर लिए गए। FBR हुकाम के मुताबिक नॉन टैक्स पेड सिगरेट के 200 से ज्यादा कार्टन तहवील में लिए गए। टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नॉन टैक्स पेड सिगरेट फरोख्त करने वालों के लिए 3 साल कैद की सजा है। जब्त शुदा सिगरेट की कानूनी कार्रवाई के बाद नजरे आतिश कर दिया जाएगा। सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। पंजाब में मसाजिद के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्तान में पहली बार मसाजिद का डेटाबेस तैयार। जिला भर में 1700 से ज्यादा बड़ी मसाजिद रजिस्टर कर ली गई। अगले मरहले में इमाम मस्जिद को वजीफा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुल्तान में पहली मरतबा मसाजिद के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जिसके तहत जिला भर में 1700 से जायद बड़ी मसाजिद को बाकायदा रजिस्टर करके जामे डेटाबेस तैयार किया गया है। रजिस्ट्रेशन में सिर्फ वो मसाजिद शामिल की गई हैं जहां मुस्तकिल इमाम मौजूद हैं और बाकायदगी से जुम्मा नमाज अदा होती है। हमने तमाम मसाजिद पहली बार रजिस्टर की ताकि एटलीस्ट एक डेटाबेस बने कि किस एरिया में कितनी मसाजिद हैं, किस किस मसलक की हैं। इससे आपको जो है ना पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में बहुत काम आता है। जिले इंतजामिया के मुताबिक सिटी तहसील में 750, तहसील सदर में 400, जलालपुर पीरवाला में 200, जबकि शुजाबाद में भी तकरीबन 200 मसाजिद का इंदराज मुकम्मल किया गया है। इस दौरान तमाम मसाजिद के इमाम साहिबान का मुकम्मल डाटा भी हासिल कर लिया गया है, जो पॉलिसी मेकिंग और मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 1700 से ज्यादा हमने मसाजिद हमने रजिस्टर की, जिसमें 750 से ज्यादा सिटी तहसील में, 400 से ज़्यादा सदर में, 200 से ज़्यादा जलालपुर में और अराउंड 200 के करीब जो है वो शुजाबाद में रजिस्टर हुई हैं। इसके साथ साथ जो उनके इमाम हैं उनका भी पूरा डाटा हमने इसमें लिया है और अब वही डाटा एक पोर्टल हमारा होम डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है जो आज से या कल से स्टार्ट हो जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से इमाम मस्जिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने के लिए इकदाम जारी हैं। इसके लिए होम डिपार्टमेंट का पोर्टल जल्द फाल किया जा रहा है। रजिस्टर इमाम साहिबान के बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे और मुकर्रर वजीफा बराह रास्त इनके अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाएगा ताकि शफाफ निजाम के तहत मसाजिद और इमाम साहिबान की माली मावनत यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही। आगे बढ़े आपको बताएं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मिशन। मुजफ्फरगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मकसद नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और फील्ड ऑपरेशन में शफाफियत और जवाबदही को मजीद बेहतर बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी मौसर मॉनिटरिंग, शहरियों से मुनसफाना बर्ताव और जिम्मेदार पॉलिसिंग में मुआवन साबित होगी।
मुजफ्फर गढ़ में भी नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए इकदाम जारी। ट्रैफिक पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस के बाहमी ताउन से ई चालान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मकसद नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद, फील्ड ऑपरेशन में शफाफियत और जवाबदही को मजीद बेहतर बनाना है। सेफ सिटी अथॉरिटी के ड्रोन कैमरों और दीगर आलात से ट्रैफिक कवानीन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये जदीद कैमरे AI से मुंसलिक हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 1265 ई चालान किए गए, जबकि 8 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। AI रिलेटेड हमारे कैमरे हैं जो कि खुद वायलेशन को मॉनिटर करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं और उस नंबर प्लेट के अगेंस्ट, फर्ज किया एक बाइक वाला जा रहा है, उसका हेलमेट नहीं है, तो हमारा कैमरा AI के थ्रू उसको डिटेक्ट करता है विदाउट हेलमेट। पुलिस हुकाम के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी, मुअस्सर मॉनिटरिंग, शहरियों से मुनसिफाना बर्ताव और जिम्मेदार पुलिसिंग में मुआविन साबित होगी। ये इकदाम इस बात का आकाश है कि सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए स्मार्ट पुलिसिंग और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए पुरअज़्म है। पुलिस हुकाम का मजीद कहना था कि शहरियों को नए ट्रैफिक कवानीन बारे ज्यादा से ज्यादा आगाही फराहम की जा रही है ताकि शहरी जुर्मानों के साथ साथ हादसात से भी बच सकें। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फर। जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन 10 जनवरी को होंगे। सपोर्टर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने में मसरूफ, इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा के 10 जनवरी के इंतखाबात का बाहमी इत्तफाक राय से फैसला। सरदार कामरान खान एडवोकेट बिला मुकाबला सदर और शहबाज भट्टी एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिए गए। सरदार कामरान खान दूसरी मरतबा डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुंतखब हुए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारान नईम गुज्जर और शफीक जतियाल ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। उधर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात के दौरान गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। सपोर्टर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने में मसरूफ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इलेक्शन 10 जनवरी को होंगे। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि सदारत की नशिस्त पर एडवोकेट बुशरा नकवी और अफजल जट में 1-1 मुकाबला है। साइकिल रिक्शा बहावलपुर की सकाफत का अहम हिस्सा। ये साइकिल रिक्शा दहाइयों तक शहर के बाजारों और शाहराहों पर रवा दवा रहा। 1992 में साइकिल रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद अब ये साइकिल रिक्शा सिर्फ म्यूजियम में ही नजर आता है। बहावलपुर की सकाफत के लिए मुख्तलिफ म्यूजियम गैलरी में चोलिस्तान से मुतल्लिका अशिया भी सयाहों की तवज्जो का महवर। साइकिल रिक्शा दहाइयों तक बहावलपुर की गलियों और बाजारों की शनाख्त रहा, मगर आज ये साइकिल रिक्शा सिर्फ यादों और म्यूजियम तक महदूद हो चुका है। जापान और चीन से शुरू होने वाली अवामी सवारी पहले रियासत बहावलपुर और बाद में शहर बहावलपुर की भी सकाफती अलामत बनी। न शोर न आलूदगी, बेहतरीन माहौल दोस्त सवारी। साइकिल रिक्शा को सस्ती तरीन सवारी भी तस्वुर किया जाता था। बिल्कुल। अब अगर मैं अंदरूनी शहर की बात करूं तो वहां पे जो अपनी सवारियों को मंजिल तक पहुंचाने का जो जरिया था वो साइकिल रिक्शा ही था। 1992 तक ये चलता रहा, उसके बाद बैन हो गया। अंदरूने शहर की तंग गलियां हों या मसरूफ बाजार, साइकिल रिक्शा हर रास्ते का काबिल एतमाद साथी रहा। 1992 में पाबंदी के बाद ये सवारी सड़कों से गायब हो गई और बहावलपुर की सकाफत का एक रोशन बाब बंद हो गया। गुज़िश्ता 33 साल से साइकिल रिक्शा फिर कभी सड़कों पर नजर नहीं आया। आराइश के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती थी वो भी दिखाई गई हैं। साथ में हमने साइकिल रिक्शा रखा है कि वक्त के साथ जो जदीदियत आई है उसको किस तरह अडॉप्ट किया गया है। बहावलपुर म्यूजियम की गैलरी में रखा साइकिल रिक्शा आज माजी की सादगी, अवामी जिंदगी और तहजीबी शनाख्त की मुतहर्रिक तस्वीर बनकर सियाहों की तवज्जो का मरकज है। कैमरामैन सकलैन शाह के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। डिजिटल दौर में नौजवानों को बाख्तियार बनाने का मिशन। रहीम खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। 601 होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तलबा को लैपटॉप देने का सिलसिला जारी। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में इस हवाले से तकरीब सजाई गई, जिसमें 601 होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। इस इकदाम का मकसद नौजवानों को डिजिटल दौर में बाइख्तियार बनाना और तालीम, तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों को नई रफ्तार देना है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। इस मौका पर तलबा के चेहरों पर खुशी, एतमाद और मुस्तकबिल के ख्वाब वाज़े दिखाई दिए। वाइस चांसलर का तकरीब से खिताब में कहना था कि लैपटॉप स्कीम तालीम, तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों को नई समत दे रही है। डिजिटल सहूलतें नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। यही लैपटॉप आपकी तालीम के लिए आपको फ़ायदा दे सकता है। यही लैपटॉप आपकी ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको फ़ायदा दे सकता है। यही लैपटॉप आपको मालूम है कि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
फ़ायदा उठा सकते हैं। तलबा के मुताबिक हुकूमत पंजाब के ये तालीमी इक़दामात खुश आइंद हैं और जदीद तालीम की जानिब एक मजबूत कदम है, जिससे उनकी तालीमी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। मुझे लैपटॉप मिला है और मैं सीएम साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये लैपटॉप दिया। ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इस यूनिवर्सिटी का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम ये लैपटॉप अचीव करें। सीएम लैपटॉप मुझे मिला, मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मुझे इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत थी। मैंने अपने मल्टीपल टास्क कंप्लीट करने थे, अपनी एक्टिविटीज़ करनी थी, तो इस लैपटॉप की वजह से जो मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ मेरे फ्यूचर्स के लिए जो मैंने टास्क करने थे। आई एम सो थैंकफुल टू चीफ मिनिस्टर साहिबा, माई यूनिवर्सिटी वीसी साहब, थैंक यू सो मच। मैं इस लैपटॉप का बहुत अच्छा इस्तेमाल करूँगी, स्पेशली मुझे इसकी नीड थी प्रेजेंटेशंस के लिए, असाइनमेंट्स बनाने के लिए। आई एम सो थैंकफुल और फाइनली मेहनत का सिला मिल गया। तलबा का कहना था कि वो हुकूमत पंजाब के विजन के साथ खड़े हैं। ये स्कीम उन्हें आलमी मयार की तालीम के करीब लाएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में सालाना रिसर्च डे, जहां किताबी इल्म नहीं अमली तहकीक बोलती नजर आई। अमराज की बरवक्त और दुरुस्त तशखीस के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में 41 तहकीकी मकाले पेश किए गए। शेख जायद मेडिकल कॉलेज के रहीम यार खान में सालाना रिसर्च डे का शानदार इनेकाद किया गया। इवेंट के दौरान मुख्तलिफ शोबाजात की 41 तहकीकी काविशें पेश की गई। प्रिंसिपल शेख जायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी का तकरीब से खिताब में कहना था कि रिसर्च किसी भी मेडिकल अदारे की रूह होती है। हमारा मकसद तलबा और असातिज़ा को जदीद तहकीक की तरफ राग़िब करना है ताकि मुकामी मसाइल के मुताबिक बेहतर तिब्बी हल सामने आ सके। भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो वो सिर्फ पेशेंट केयर या स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक एक्टिविटी है खाली वो काफ़ी नहीं है। रिसर्च जो है ये भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। रिसर्च होगी तो नई जो इजादात हैं वो मार्ज़ वजूद में आएंगी। रिसर्च डे पर खास तौर पर पल्मोनोलॉजी और सीने की बीमारियों की बरवक्त तशखीस पर फोकस किया गया। टीबी के इब्तदाई मरहले में तशखीस और मुंह के कैंसर की एआई टेक्नोलॉजी से तशखीस ने शुरा की खास तवज्जो हासिल की। माहिरीन ने शुरा को लेक्चर्स और पोस्टर प्रेजेंटेशन की मदद से तशखीस में बेहतरी की जदीद तरीकों से रोशनास कराया। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शोकास जो हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हम रिसर्च कल्चर परवान चढ़ा रहे होते हैं ताकि हमारे अंडर ग्रेजुएट्स, रेजिडेंट्स और फैकल्टी मेंबर रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करें। बिकॉज ये होल ऑफ द प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर बहुत से स्किल्स, बहुत सी नॉलेज और इसके अंदर बहुत से एनालिटिक स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। एनुअल रिसर्च डे है शेख जायद मेडिकल कॉलेज का और इसके अंदर हमारा पिछले साल में जो भी रिसर्च कंडक्ट किए हैं डॉक्टर्स ने, स्टूडेंट्स ने, पीजीआर्स ने, वो सब प्रेजेंट होती हैं और उसके अंदर हम इनको जो है अवार्ड देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तहकीक ही वो रास्ता है जो तशखीस को बेहतर, इलाज को मौसर और इंसानियत को महफूज बनाता है। शेख जायद मेडिकल कॉलेज का रिसर्च डे तिब्बी साइंस में एक रोशन मिसाल बनकर सामने आया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पंजाब कॉलेज रशीदाबाद कैंपस में रंगारंग कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ज़ेर एहतमाम फेस्टिवल में तलबा और तालिबात ने जोश खरोश के साथ शिरकत की और अपनी सकाफती सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। तफसीलात देखें सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मुल्तान ने पंजाब कॉलेज रशीदाबाद कैंपस में सजाया रंगारंग कल्चरल फेस्टिवल, जहां फूड स्टॉल, सकाफती सरगर्मी और कवाली नाइट से तलबा तालिबात ने खूब इंजॉय किया। कल्चरल फेस्टिवल में रिवायती रक्स, म्यूजिक, इलाकाई सकाफतों की अक्कासी करते स्टॉल्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पर तलबा तालिबात भरपूर इंजॉय करते नजर आए। कल्चरल इवेंट हुआ है, बेसिकली हमने कल्चरल इवनिंग सेलिब्रेट की है ताकि हम अपने पाकिस्तान के कल्चर्स को, सकाफत को प्रमोट कर सकें, ताकि हमारी यंग जनरेशन को भी पता चले कि हमारी सकाफत क्या है, हमारे कल्चर क्या है। यहाँ पे हमें आके बहुत मजा आया, हर चीज़ अच्छी थी। यहाँ पर हमें खाने का अच्छा मिला है, बाकी स्टॉल्स वगैरह अच्छे लगे हुए हैं, बाकी कल्चरल डेकोरेशंस अच्छी हुई हैं, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस अच्छी हुई हैं जो पार्टिसिपेंट्स ने परफॉर्म किया है। फेस्टिवल के मौके पर पंजाब कॉलेज रशीदाबाद कैंपस में कवाली नाइट का भी खसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कवाली नाइट में पेश रूह परवर कलाम को शुरा ने खूब सराहा और प्रोग्राम को यादगार करार दिया। इस मौके पर खाने पीने के लाइव स्टॉल्स भी सजाए गए। मैं सिंधी कल्चर को प्रमोट कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर यूसीपी पे आकर। मतलब कि हमने बहुत सारे इवेंट को हमने सारा ऑर्गेनाइज किया है और
बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है। शुरखा का कहना था कि कल्चरल फेस्टिवल और कवाली नाइट जैसे इवेंट्स न सिर्फ तुलबा को अपनी सकाफत से जोड़ते हैं बल्कि इनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे प्रोग्राम से इन्हें सीखने और एंजॉय करने का मौका भी मिलता है। तुलबा तालिबात का कहना था कि इस तरह के तकरीबात में आने से न सिर्फ उनको तफरीह के मौके मिलते हैं बल्कि अपना टैलेंट भी दुनिया के सामने लाने का मौका मिलता है। कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।